Good morning, student. Subject Science, Chapter 3 to be continue. Polyester and acrylic. Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from these fibers does not get wrinkled easily. It remains crisp and is easy to wash, so it is quite suitable for making dress material. You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. Terylene is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any others yarn. पॉलीएस्टर ये अनदर सिंथेटिक फाइबर है. इस फाइबर से बनने वाले फैब्रिक इजीली रिंकलेट नहीं होते. ये कड़क रहते हैं और उसको वॉश करना इजी है, जिससे ये पहनने वाले कपड़े के तरीके से यूज़ किया जाता है. आप पॉलीएस्टर के शर्ट और अदर्स ड्रेसेस पहने हुए देखे होंगे. टेरिलीन ये बहुत पॉपुलर पॉलीएस्टर है. उसके वेरी फाइन फाइबर बन सकते हैं कि जिससे उसके कोई भी यारान की वोवन कर सकते हैं. माई मदर ऑलवेज बिजी buys PET bottle and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is. मेरी मदर्स हमेशा शुगर और राइस को भरने के लिए PET की बोतल और PET की जार यूज़ करती हैं. आई वंडर ये PET है क्या? PET is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wire and many others useful products. PET ये पॉलीएस्टर का वेरी फैमिलियर है. ये बॉटल, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर और अदर्स यूज़फुल प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है. लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलीएस्टर. आप अपने आसपास देखे ही होंगे पॉलीएस्टर से बनी हुई थिंग्स की लिस्ट. Polyester, poly plus ester, is actually made up of the repeating units of a chemical called an ester. Esters are the chemicals which give fruits their smell. Fabrics are sold by names like polycot, polywool, terrycot, etc. As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers. Polycot is mixture of polyester and cotton. Polywool is a mixture of polyester and wool. पॉलीएस्टर, पोली प्लस एस्टर. एक्चुअली में एस्टर नाम का
केमिकल्स के रिपीटिंग से बनता है। ये ऐसा केमिकल्स है जो फ्रूट्स को उनकी स्मेल देते हैं। पॉलीकोट, पॉलीवूल और टेरिकोट जैसे नाम की उसके फैब्रिक बिकता है। उसके नाम के मुताबिक ही ये 2 टाइप्स के फाइबर्स मिक्स करके बनाया जाता है। पॉलीकोट ये पॉलिएस्टर और कॉटन के फाइबर्स के मिक्सचर्स हैं, जबकि ये पॉलिएस्टर और वूल के मिक्सचर हैं। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they are appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. They are available in a variety of colors. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. आपने विंटर में स्वेटर और शॉल्स और ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं। इसमें बहुत से जो कि नेचुरल फाइबर जैसे दिखाई देता है, तब भी हकीकत में तो नेचुरल फाइबर में से बने नहीं होते हैं। ये अनदर्स टाइप के सिंथेटिक फाइबर में से बने होते हैं, जिसको एक्रिलिक कहते हैं। नेचुरल फाइबर में से मिले हुए वूल खूब एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि एक्रिलिक के फाइबर में से बने हुए क्लॉथ्स सस्ते होते हैं। ये बहुत कलर्स में अवेलेबल होता है। सिंथेटिक फाइबर ड्यूरेबल्स में ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, जिसकी वजह से ये नेचुरल फाइबर्स से ज़्यादा पॉपुलर होता है। इसलिए क्या होता है, नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर है। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. Activity 3.6 of class 7th. What did you observe? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of the natural fibers. You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fibers. If the cloth catch fire, it can be disastrous. The fabric melts and sticks to the body of the person wearing it. We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory.
आप नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स के बर्निंग एक्टिविटी स्टैंडर्ड 7th में पढ़ चुके हैं। आपने ऑब्ज़र्व क्या किया है? जब आप सिंथेटिक फाइबर्स को बर्निंग करोगे तब उनकी बिहेवियर नेचुरल फाइबर्स से अलग होती है। आपने नोटिस किया होगा कि गर्म करने से फाइबर्स पिघल जाता है। ऐसे देखो तो सिंथेटिक फाइबर्स को डिसएडवांटेज है। जो क्लॉथ्स में फायर लगे तो ये बहुत नुकसान करता है। फैब्रिक मेल्ट तब पिघलकर पहनने वाले बॉडी के साथ जुड़ जाता है। इसलिए अपने किचन में या लेबोरेटरी में काम करते वक्त सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनना चाहिए। Oh, now I understand why my mother never wears polyester clothes while working in the kitchen. Oh, now अब मुझे समझ आया कि किस लिए मेरी मम्मी किचन में काम करती हैं तब कभी पॉलिएस्टर का क्लॉथ्स नहीं पहनती। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. सभी सिंथेटिक फाइबर्स पेट्रोलियम ऑर्गेनिक के जिसको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं उसके रॉ मटेरियल्स बहुत से प्रोसेस करके बनाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इमेजिन दैट it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress materials. They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. Perform the following activity and learn for yourself. इमेजिन करो कि बारिश आ रही है। आप किस टाइप का अम्ब्रेला यूज़ करोगे और क्यों? सिंथेटिक फाइबर्स को यूनाइक की खासियत की वजह से उसको पहनने के ड्रेस के तरीके से बहुत पॉपुलर है। ये क्विकली ड्राई हो जाते हैं, ड्यूरेबल्स, लेस एक्सपेंसिव, रिटेली अवेलेबल है और इजी मेंटेन है। नीचे की एक्टिविटी करके आप खुद ही सीख सकते हो। Activity 3.2 Take 2 cloth pieces of the same size, roughly half a meter square each. One of these should be from natural fiber. The other could be a synthetic fiber. You can take help of your parents in selecting these pieces. Soak the pieces in different mugs, each containing the same amount of water. Take the pieces out of the containers after 5 minutes and spread them in the sun
for a few minutes. Compare the volume of the water remaining in each container. हाफ मीटर स्क्वायर के सेम साइज़ के क्लोथ्स के 2 पीसीस लो, जिसमें से एक नेचुरल फाइबर्स में से बना हुआ हो और दूसरा सिंथेटिक फाइबर में से बना हो। क्लोथ्स के पीसीस को सिलेक्ट करने के लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। दोनों क्लोथ्स को सेम अमाउंट में पानी भरे हुए एक एक कंटेनर में भीगने दो। 5 मिनट्स बाद पीसीस को कंटेनर में से बाहर निकालकर सनलाइट में सुखा दो। दोनों कंटेनर में से बचे हुए पानी को वॉल्यूम को कंपेयर करो। इस एक्टिविटी को मैं रिपीट करती हूँ। आपको इसमें हाफ मीटर स्क्वायर के सेम साइज़ के क्लोथ्स के 2 पीसीस लो, जिसमें से एक नेचुरल फाइबर में से बने हुए हों और दूसरा सिंथेटिक फाइबर में से बने हों। क्लोथ्स के पीसीस को सिलेक्ट करने के लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। दोनों क्लोथ्स को सेम अमाउंट में पानी भरे हुए एक कंटेनर में भीगने दो। 5 मिनट्स बाद पीसीस को कंटेनर में से बाहर निकालकर सनलाइट में सुखा दो। दोनों कंटेनर में बचे हुए पानी का वॉल्यूम को कंपेयर करो। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको कंपेयर करना है कि कौन से कंटेनर में ज़्यादा पानी बचा हुआ है और कौन से कंटेनर में पानी कम है। Do synthetic fabrics soak less more water than the natural fabrics? Do they take less more time to dry? क्या सिंथेटिक फाइबर में से बने हुए फैब्रिक्स के टुकड़ों को नेचुरल फैब्रिक में से बने फैब्रिक से लेस और मोर वाटर यूज़ किया है? क्या ड्राई होने में लेस और मोर कम या ज़्यादा टाइम लगता है? What does this activity tell you about the characteristics of the synthetic fabrics? इस एक्टिविटी इन सिंथेटिक फैब्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या कह सकते हैं? Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of this fabric compared to the natural fabrics. अपने पेरेंट्स के पास से नेचुरल फैब्रिक्स के कंपेयर में यह फाइबर्स के फैब्रिक मेंटेनेंस, कॉस्ट और इसके बारे में जानो। प्लास्टिक्स। You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. आप एवरीडे यूज़ में आने वाले आर्टिकल्स को तो पहचानते हैं। ऐसी आइटम्स और उसके यूजेस की लिस्ट आपको यहाँ तैयार करनी है। यहाँ पर आपको 2 फिगर दी हुई है, 3.6A और 3.6B।
3.6a ये क्या है, लाइनर, ये लाइन से है। और सेकेंड आपको क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, क्या आपको ये क्रॉस में अरेंजमेंट हुआ है, जैसे ये आपको ये सीधी लाइन दी हुई है और सेकेंड बी में आपको क्रॉस में दिया हुआ है लाइन, और फिर ये आपको क्रॉस में कर दिया है, इसीलिए इसको क्या बोले हैं, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। प्लास्टिक इज आल्सो a polymer like the synthetic fiber. All plastics do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in others it is cross-linked. Figure 3.6 plastic articles are available in all possible shape and size. As you can see in figure 3.7, have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is easily moldable, can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. That is why it finds such a variety of uses. सिंथेटिक फाइबर्स जैसे ही प्लास्टिक भी पॉलीमर है। सभी प्लास्टिक में यूनिट की अरेंजमेंट सेम नहीं होती हैं। कितने में ये लाइनर होता है, जबकि अदर्स में ये क्रॉस लिंक होता है। जैसे मैंने आपको फिगर 3.6 में बताया था कि प्लास्टिक का अरेंजमेंट कैसे होता है, लाइनर यानी लाइन से, और सेकंड होता है क्रॉस लिंक्ड में, क्रॉस में होता है, इसे क्रॉस्ड लिंक अरेंजमेंट कहते हैं, क्रॉस लिंक में होता है। फिगर 3.6 में जो आपको बताया गया है, ये तरीके से प्लास्टिक की आर्टिकल्स पॉसिबल हो ऐसे शेप्स और साइज़ में अवेलेबल होता है। क्या आपको वंडरेट होता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? हकीकत ये है कि प्लास्टिक को इजीली से कोई भी शेप में कर सकते हैं, यानी कि कोई भी शेप में कर सकते हैं। प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेल्टेड कर सकते हैं। इसलिए बहुत से वैरायटी यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक में। फिगर 3.7 में आपको प्लास्टिक के कुछ वेरियस आर्टिकल्स बताए हैं कि प्लास्टिक से कौन कौन से आर्टिकल्स बन सकते हैं। यहाँ पर आपको चेयर दिया हुआ है, पॉट्स है, चिल्ड्रन की टॉयज़ है, ये सब प्लास्टिक से बनती हैं। पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन इज़ एन एग्जाम्पल of a plastic. It is used for making commonly used polythene bags. पॉली प्लस इथीन ये प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। ये कॉमन यूज़ में आने वाली पॉलीथीन बैग्स बनाने में यूज़ होता है। Now try to bend a piece of plastic
yourself, can all the plastic articles be bent easily? अब आप प्लास्टिक के एक पीसीस को बेंड करने की कोशिश करो। क्या प्लास्टिक की ऑल आर्टिकल्स इजीली बेंड हो सकती है? You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. When we add hot water to a plastic bottle, it deformed such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. Polythene and PVC are some of the examples of thermoplastic. These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. आप ऑब्ज़र्व करो कि सम आर्टिकल्स इजीली बेंड कर सकते हैं, जबकि सम फोर्स ज़्यादा ताकत लगाने से बेंड करने से जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। जब अपने प्लास्टिक की बॉटल में गर्म पानी डालते हैं तब ये डिफॉर्म्ड हो जाता है। ऐसे प्लास्टिक के जो गर्म करने से इजीली डिफॉर्म्ड यानी उसके शेप चेंज हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। टॉयज़, कॉम्स और वेरियस टाइप्स के कंटेनर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। थर्मोप्लास्टिक का यूज़ किस में होता है? टॉयज़, कॉम्स और वेरियस टाइप्स के कंटेनर बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक का यूज़ होता है। On the other hand, there are some plastic which when molded once can not be softened by heating. These are called thermosetting plastic. Two examples are bakelite and melamine. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electrical switches, handles of various utensils, etc. Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastic. It is used for making floor tiles, kitchenware and fabrics which resist fire. Figure 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastics. अदर हैंड देखो तो सम प्लास्टिक्स के और प्लास्टिक के एक बार कोई शेप देने के बाद गर्म करके उसे नरम नहीं कर सकते, उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। बेकेलाइट और मेलामाइन ये टू इसके एग्जाम्पल हैं। बेकेलाइट ये हीट और पुअर कंडक्टर हैं। ये इलेक्ट्रिकल स्विच, अलग वेरियस
यूटेंसिल्स, हैंडल्स बनाने में यूज़ होता है। ये मेलामाइन ये वेस्टियल्स है। ये रेसिस्ट फायर्स हैं और दूसरे प्लास्टिक से हीट को ज़्यादा सहन कर सकते हैं। ये फ्लोर टाइल्स, किचन्सवेयर और रेसिस्ट फायर फैब्रिक्स बनाने में यूज़ होता है। फिगर्स 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का वेरियस यूज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपको प्लास्टिक के 2 टाइप्स बताए गए हैं। नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक और नंबर 2 सेकेंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का यूज़ टॉयज़, कप्स और वेरियस टाइप के कंटेनर बनाने के लिए यूज़ होता है। थर्मोप्लास्टिक्स के शेप को गर्म करने से इजीली चेंज हो सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को गर्म करके एक बार आपने जो शेप दे दिया है उसको वापस चेंज नहीं कर सकते। ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ हीट और पावर कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल स्विच, अलग अलग वेरियस यूटेंसिल, हैंडल बनाने में यूज़ होता है। ये प्लास्टिक रेसिस्ट फायर है और दूसरे प्लास्टिक से ज़्यादा गर्म करने से ये सहन कर सकती है, ये पिघलती नहीं है। इसका यूज़ फ्लोर टाइल्स, किचन्सवेयर और रेसिडेंट फायर फैब्रिक्स बनाने में यूज़ होता है। जो आपको यहाँ स्विच आपको यहाँ पर आर्टिकल्स के कुछ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के फिगर्स दी हुई है। इलेक्ट्रिक स्विच, वायर, प्लेट्स, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनता है। Plastics as material of choice. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seem most convenient. This is because of their light weight, lower price, good strength, and easy handling, being lighter as compared to metals. Plastics are used in car, aircrafts and spacecrafts too. The list is endless if we start counting articles like slippers, furnitures, decorations, pieces, etc. प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइसेस, एक बार अपने रिपीट करते हैं, रीड करना। टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम्स, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट, एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर्स seems most convenient. This is because of their light weight, lower price, good strength, and easy handling, being lighter as compared to metals. Plastic are used in cars, aircraft, and spacecraft too. The list is endless if we start counting articles like slipper, furniture, decorations, pieces, etc. टुडे जो अपने वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट,
एक्सेट्रा स्टोरिंग करनी हो तो प्लास्टिक के कंटेनर सबसे कन्वेंट लगता है। इस बात के लिए आपको लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ और आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मेटल्स के कंपेयर में वेट में लाइट, हल्का होने की वजह से प्लास्टिक का यूज़ कार, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में भी होता है। जो लिस्ट बनाए तो स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशंस के पीसीस एक्सेट्रा जैसी कितनी ही एंडलेस आर्टिकल्स काउंटिंग होती जाएगी। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। नाउ लेट्स प्लास्टिक के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस को मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करती हूँ। टुडे जो आपने वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा को स्टोरिंग करनी हो तो प्लास्टिक के कंटेनर सबसे कन्वीनियंट लगते हैं। इस बात के लिए आपको लाइट वेट, लो प्राइस, गुड स्ट्रेंथ और आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मेटल्स के कंपेयर में वेट में लाइट होने की वजह से प्लास्टिक का यूज़ कार, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में भी होता है। जो लिस्ट बनाए तो स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसीस एक्सेट्रा जैसी कितनी ही एंडलेस आर्टिकल्स काउंटिंग होती जाएगी। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। नाउ लेट्स प्लास्टिक के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. But plastics do not react with water and air. They are not corroded easily. That is why they are used to store various kinds of materials including many chemicals. आप जानते होंगे कि मेटल्स लाइक आयरन जब मॉइस्चर और एयर में खुला रखते हैं तो उसमें रस्ट लगते हैं, लेकिन प्लास्टिक एयर या वाटर के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं देता। इसलिए प्लास्टिक की वेरियस काइंड मटेरियल्स और केमिकल्स को स्टोर करने में यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। आप जानते होंगे कि मेटल लाइक आयरन जब मॉइस्चर और एयर में खुला रखने से रस्ट लगते हैं, लेकिन प्लास्टिक को एयर या वाटर के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं देता। इसलिए प्लास्टिक की वेरियस काइंड मटेरियल्स और केमिकल्स को स्टोर करने में यूज़ किया जाता है। Plastic is light,
strong, and durable. Talk to your parents or grandparents about the types of buckets that were used in the past. What is the materials of the buckets or mugs you are using today? What are the advantages of using a plastic container since plastic is very light, strong, durable, and can be molded into different shapes and size? It is used for various purposes. Plastic are generally cheaper than metals. They are widely used in industry and for household articles. Make a list of different kinds of plastics containers that you use in daily life.